Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ I hope you're doing well in Christ. और मैं ये उम्मीद करता हूँ आप यीशु मसीह में अच्छे हैं। We are studying through Mark's Gospel. और हम मरकुस का सुख समाचार का पुस्तक पढ़ रहे हैं We have finished 2 chapters. और अब तक हमने 2 अध्याय कर दिया है Now we are in the 3rd chapter. और अभी हम तीसरे अध्याय में हैं। We saw in the last episode how Jesus taught that the Sabbath was made for man. और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने सिखाया कि जो सब्त का दिन है वो मनुष्य के लिए बनाया गया है। Now we are continuing on the same thought. और उसके बाद हम उसी सोच में आगे बढ़ने वाले हैं। Chapter 3 of Mark's Gospel, verse 1. और तीसरा अध्याय मरकुस का पहला वचन। And he entered the synagogue again, and a man was there who had a withered hand. वह फिर आराधनालय में गया, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। Again, you see, he is going to the synagogue again. हम देखते हैं कि वो फिर से आराधनालय में जाते हैं। Jesus went to the synagogue and talked there and took every opportunity to teach there. और यीशु मसीह ने हर एक अवसर लिया कि वो आराधनालय में जाके लोगों को प्रचार करते थे। First we saw a man with an unclean spirit in the synagogue. Now we see a man with a withered hand in the synagogue. पहले हमने देखा था कि आराधनालय में एक दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति हमने देखा था और अभी हम आराधनालय में उस व्यक्ति को देख रहे हैं जिसका हाथ सूखा हुआ था। Withered hand means it is not working. सूखा हुआ हाथ का मतलब ये है कि वो काम नहीं कर रहा। They watched Jesus closely to see if he would heal him on the Sabbath so that they could accuse him. Verse 2. और वचन 2 में, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसी की घात में लगे हुए थे कि देखे वो सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। We saw Jesus clearly told them that I am the Son of God, I am the Lord here, I am the Messiah, but yet they were not worshipping him, they were there to accuse him. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन्हें कहा था कि वो परमेश्वर है, वो प्रभु है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने उनका आराधना नहीं की। People were there only to accuse him. क्योंकि जो लोग थे वो बस उनका घात करना चाहते थे। And these are the Pharisees, I want you to understand. और ये लोग जो थे वो फरीसी थे। So Jesus is going and saying this with our man, so they are waiting to see, let's see what he's doing now and we can catch him. और अभी ये लोग बस यही इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह कुछ ना कुछ करेंगे ताकि हम उन्हें पकड़ लें। They watched. उन्होंने देखा। And then, verse 3. और फिर वचन 3। Jesus said to the man who had the withered hand, stand up among all these people, he said. उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। Step forward. और आगे आ जा। That's all Jesus said. और यही यीशु मसीह ने कहा। I want you to imagine with me, there's a lot of people, there are the Pharisees on one side, there is a withered man here, there is Jesus here. And Jesus looks at them and then he understands what they're up to and looks at the withered man and says, step forward. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ सोचें कि एक जगह पे भीड़ है, एक जगह पे फरीसी लोग हैं और एक जगह पे ये जो व्यक्ति है जिसका हाथ सूखा हुआ है। यीशु मसीह वो फरीसी को देख रहे हैं और फिर यीशु मसीह उस व्यक्ति को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि खड़े हो जा। So everyone can see him. ताकि सब लोग उन्हें देख सकें। People sometimes see somebody suffering and they don't have pity in their heart. कभी कभी जो लोग हैं ये देख नहीं पाते कि कोई व्यक्ति इतने बुरे हाल में है, उसे मदद की जरूरत है और वो उनकी मदद नहीं कर पाते। They're all about, judging them. वो सिर्फ वहां पे न्याय करने के लिए आते हैं। That is exactly how these guys were standing there. और ऐसे ही ये लोग वहां पे खड़े थे। We see Jesus didn't respond to the Pharisees, but he instructed to the man. हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने फरीसी लोगों से कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति को आज्ञा दी। And Jesus wanted this to be known to all the people that he can work on the Sabbath. और यीशु मसीह सबको यही बताना चाहते थे कि यीशु मसीह सब्त के दिन भी काम करते हैं। In fact, to do good, you don't have to worry on the Sabbath.
इसका मतलब ये है कि अच्छा काम करने के लिए आपको सब्त का इंतजार नहीं करना है। On the Sabbath day also you can do good. इसका मतलब ये है कि सब्त के दिन भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। Jesus said, I am the Lord of the Sabbath in the previous portion we saw in verse 28 of chapter 2. पिछले एपिसोड में हमने अध्याय 2 में 28वां वचन में ये देखा कि इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। He is the Lord of the Sabbath as well. और वो सब्त के भी परमेश्वर है। But these guys don't want to hear it. लेकिन इन लोगों को वो सुनना नहीं था। They hated Jesus. वो यीशु मसीह से नफरत करते थे। Why? क्यों? Because they wanted the crowd to look at them. क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी भीड़ है वो उनकी ओर देखे। And then verse 4. और फिर वचन 4। And Jesus responds, और उन्होंने उनसे कहा, Is it lawful on the Sabbath to do good or to do evil, to save life or kill? क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? What is the law? क्या है नियम? Please pay attention to every word that Jesus said here. आप प्लीज ध्यान से सुने कि यीशु मसीह ने हर एक शब्द को कैसे कहा। Is it lawful to do good on the Sabbath? क्या सब्त के दिन भला करना उचित है? Because they have taught on the Sabbath you cannot do anything good or bad. क्योंकि उन्हें ये सिखाया गया था, वो बोल रहे थे कि सब्त के दिन ना तुम अच्छा काम कर सकते हो ना ही तुम बुरा काम कर सकते हो। So they made a law out of it. तो उन्होंने इसके ऊपर एक नियम बना लिया। So Jesus asked, is it lawful to do good on the Sabbath or to do evil? इसलिए यीशु मसीह ये पूछ रहे हैं कि क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना? Good any day is good. और हमेशा अच्छा ही करना है, कोई भी दिन हो। You get the point, right? आपको समझ में आ रहा है ना? See, Jesus didn't shy away from doing good to this man. और यीशु मसीह को कोई भी झिझक नहीं हुआ कि उन्होंने उस व्यक्ति के साथ अच्छा ही किया। 1 Peter chapter 2 verse 15. I want you to turn your Bibles to 1 Peter chapter 2 verse 15. और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ पहले पत्रस में दूसरा अध्याय में 15वां वचन में आए। In that you see, for this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। Jesus on verse 4, he said, Is it lawful to do good on the Sabbath or evil, to save a life or destroy it? But they were silent. Did you see that? और हम वचन 4 में यही देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? लेकिन आप देखते हैं वो चुप रहे। They were silent. वो लोग चुप हो गए। Doing good is always on God's side. जब भी आप अच्छा करते हो तो वो हमेशा परमेश्वर के ही साइड में होता है। People who do evil, they don't want to speak when you do good because everything will turn against them. और जब भी कोई लोग बुरा करते हैं तो कोई भी आपके साथ नहीं आएगा, वो उस बुराई के खिलाफ ही जाएगा। They have to be silent. और वो चुप हो जाएंगे। See, now a lot of people are watching. I want you to understand that. और अभी मैं चाहता हूँ कि आप समझे कि बहुत लोग अभी देख रहे हैं। Jesus was there without any fear. और वहाँ पे यीशु मसीह थे बिना कोई डर के। He was there to finish the work for which he came. और वो अपना काम पूरा करने के लिए आए थे, जिसके लिए वो वहाँ पे आए थे। There was this man whose hands are withered and these guys didn't do anything, but now Jesus is going to do something and they're waiting to accuse Jesus. और ये जो व्यक्ति है जिसका हाथ सूख गया था और सब भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई थी, और जो फरीसी लोग हैं वो यही जानना चाहते थे कि अब यीशु मसीह क्या करने वाले हैं ताकि वो उनके ऊपर दोष लगा सके। They never did anything good to this man before. उन्होंने इस व्यक्ति के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया, But Jesus wants to do now. लेकिन अभी यीशु मसीह उनके साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं। They couldn't see the good that Jesus is going to do. They're only saying, how can they accuse Jesus? बस जो फरीसी लोग थे वो यही देखना चाहते थे कि कैसे वो यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाए जाए, ना कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं ये नहीं देखने आए। What is the law of Sabbath? और सब्त का नियम क्या है? Let's go to Deuteronomy chapter 19. अभी हम व्यवस्था विवरण का अध्याय 19 में आएंगे। In chapter 19, you will see what is it. और हम वहां पे देखेंगे कि क्या है। Verse 18 onwards.
18 से। You see here, and the judges shall make careful inquiry, and indeed, if the witness is a false witness who has testified falsely against his brother, then you shall do to him as he thought to have done to his brother. So you shall put away the evil from among you. और 18 वचन में ऐसा लिखा है, तब न्याय भली बाती पूछताछ करे, और यदि इस निर्णय पर पहुंचे कि वह झूठा साक्षी है और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, तो अपने भाई की जैसी भी हानि करवाने की युक्ति उसने की है, वैसे ही तुम भी उसकी करना। इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना। Jesus didn't commit any sin. यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, Nor he was going to sin. और ना ही वो पाप करने जा रहे थे। But these guys were waiting to prove to others by making a false witness that Jesus is sinning by breaking the law of Sabbath. लेकिन ये जो फरीसी लोग हैं, ये लोगों को दिखाना चाहते थे कि यीशु मसीह जो है वो सब्त के दिन का नियम को तोड़ रहे हैं। You see, these people, they didn't have that heart to follow God's word at all. आप देखेंगे कि ये जो लोग थे, इनका दिल जो था वो परमेश्वर के पीछे नहीं था, Not for God's word. परमेश्वर के वचन के लिए नहीं था, Not for God's law. परमेश्वर के नियम के लिए नहीं था। They were there to prove that they are right. वो बस वहां पे इसलिए थे कि वो साबित करना चाहते थे कि वो सही है। It's wrong. वो गलत था। Verse 5. वचन 5। If you see Jesus responds here again, and after and looking around at them in anger, grieved by the hardness of their hearts, he said to the man, "Stretch out your hand." He stretched it out, and his hand was restored. और वचन 5 में लिखा है, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। But they kept silent. लेकिन वो सब शांत हो गए। When Jesus asked a question, immediately at that moment they became so silent. Why? और जैसे ही यीशु मसीह ने उनसे सवाल पूछा तो वो लोग चुप हो गए। क्यों? Jesus also asked, what is good, to save a life or to destroy a life? क्योंकि यीशु मसीह ने वहां पे पूछा कि क्या अच्छा है, कि किसी के जान को बचाना या किसी के जान को धोखा देना? Destroy. किसी के जान को तबाह करना। Verse 6 we see, so the Pharisees went out immediately and began plotting with the Herodians as to how they could assassinate him, meaning kill him. तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में समिति करने लगे कि वे उसे किस प्रकार नष्ट करें। To save a life or destroy it on the Sabbath day, which is lawful. और यीशु मसीह ने ये कहा कि किसी के जान को बचाना, प्राण को बचाना या मारना क्या सही है? On the Sabbath day. सब्त के दिन में। Jesus was in the work of saving this man's life. परमेश्वर इस व्यक्ति के जीवन को बचाने के काम में थे। On the Sabbath day. सब्त के दिन में। The Pharisees went against Jesus to kill him on the Sabbath day. और फरीसी यीशु मसीह के खिलाफ गए कि वो सब्त के दिन में उनको मार डालें। They were plotting. वो लोग उनके विरुद्ध कुछ काम कर रहे थे। Jesus was doing good for that man. यीशु मसीह उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे थे। Jesus said, stretch out your hand to that man. यीशु मसीह ने कहा, तू अपना हाथ को बढ़ा। Do you know that term stretch out your hand means something? क्या आपको मालूम है अपना हाथ बढ़ा इसका मतलब कुछ है? In the Old Testament, God spoke to Moses 7 times, stretch out your hand, stretch out your hand, stretch out your hand. और पुराने नियम में अगर आप देखेंगे, परमेश्वर ने मूसा से 7 बार कहा, अपने हाथ को बढ़ा, अपने हाथ को बढ़ा। God was grieved, Jesus was grieved because of the hardness of heart of these men. और यीशु मसीह को जो है उनको अच्छा नहीं लगा, वो दुखी हुए क्योंकि लोगों का दिल इतना कठोर था। And these men who hated Jesus went to kill him. और ये जो व्यक्ति लोग हैं, ये जो लोग हैं, वो यीशु मसीह से इतना नफरत करते थे कि वो उन्हें मार डालना चाहते थे। But they are not willing to do good for another man. They don't want
Jesus doing good to another man. लेकिन वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह उस व्यक्ति का कुछ अच्छा करे। On the Sabbath, their term was, on the Sabbath he cannot do this. We will catch him because he's doing some work. On the Sabbath, Jesus wanted to do good. But these guys, the same guys, broke the Sabbath by doing evil, by plotting to kill Jesus. और ये लोग चाहते थे कि यीशु मसीह सब्त के दिन कुछ भी काम ना करे, चाहे वो अच्छा ही काम क्यों ना हो। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सब्त के दिन में ये लोगों ने, फरीसी लोगों ने बुरा काम किया, क्योंकि वो यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। On the Sabbath, they are not supposed to do evil, they are supposed to do good. और सब्त के दिन में उन्हें बुरा काम करना नहीं है, उन्हें सिर्फ सब्त के दिन में अच्छा काम करना है। I want you to turn with me to Isaiah chapter 56. और अभी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ यशाया का 56 अध्याय में आए। Verse 1 and 2. 1 और 2 वचन। Keep justice, then thus says the Lord, keep justice and do righteousness, for my salvation is about to come, and my righteousness to be revealed. Blessed is the man who does this, and the son of man who lays hold on it, who keeps from defiling the Sabbath, and keeps his hand from doing any evil. यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो ऐसा ही करता, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता है और अपवित्र करने से बचा रहता है, और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। Sabbath day, you should stop doing evil. और सब्त के दिन में आपको कोई बुरा काम नहीं करना है। That's what the Bible says. और वही बाइबल में कहा गया है। That's what the scripture the Pharisees followed or believed in says. और वही वचन में कहा गया है, और वही फरीसी लोग विश्वास करते थे और उसके पीछे चलते थे। But you know what they did? लेकिन पता है उन्होंने क्या किया? They said, you cannot do anything on Sabbath, but we can do evil. और उन्होंने कहा कि तुम सब्त के दिन में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम बुरा काम जरूर कर सकते हैं। You see that? God is showing them their heart. आप देख सकते हैं परमेश्वर उन्हें उनका दिल को दिखा रहे हैं। Jesus reminds them of how Moses, Isaiah spoke from the law that they are wrong according to the scriptures. पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें मूसा के द्वारा और यशाया के द्वारा बताया कि वचन में जो लिखा है वो सच है, और वचन में लिखा है कि तुम बुरा नहीं कर सकते। That is why he asked that question, is it lawful to do good on the Sabbath or evil to save a life or destroy it? इसीलिए यीशु मसीह ने ये सवाल पूछा कि क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। Do you know the Pharisees and Herodians were not friends? They don't get along. आप जानते हैं कि फरीसी और हेरोदियों दोनों एक दूसरे के विरुद्ध थे। But just to kill Jesus, they came together. लेकिन सिर्फ यीशु मसीह को मारने के लिए वो दोनों एक साथ आ गए। Why? क्यों? We can read in verse 5, their hearts were hardened. और आप ये वचन 5 में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका जो दिल है वो कठोर हो गया था। How come? कैसे? We can see in verse 4 they were silent. और वचन 4 में हम वो देख सकते हैं, क्योंकि वो चुप रहे। Jesus knew what they were going to do, so he asked, saying, is it lawful to save a life or destroy it? और यीशु मसीह को मालूम था कि उनके दिल में क्या चल रहा है, इसलिए उन्होंने पूछा कि प्राण को बचाना सही है या मारना। Exodus chapter 7 verse 22. अगर आप निर्गमन का 7वां अध्याय में 22वां वचन देखेंगे, you will see that then the magicians of Egypt did so with their enchantments, and the Pharaoh's heart grew hard, and he did not heed them as the Lord said. और उसमें लिखा है, तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया और वो यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की न मानी। Hardness of heart. उसका दिल कठोर हो गया था। The magicians stood against Moses at that point of a time. Pharaoh stood against God at that point of a time. उस समय जो जादूगर थे वो मूसा के खिलाफ थे, और जो फिरौन था वो परमेश्वर के खिलाफ था। Now the Pharisees who are saved is standing against God. और यहाँ पे जो फरीसी लोग हैं वो अभी परमेश्वर के सामने खड़े हैं। That time the Pharaoh had hardness of heart. Now also the Pharisees have hardness of heart.
उस समय भी फिरौन का जो दिल था वो कठोर था परमेश्वर के सामने, और अभी हम देखते हैं कि फरीसी का भी दिल कठोर है परमेश्वर के सामने। If you have your heart hardened, you won't be able to accept God, receive God, and listen to Him. अगर आपका दिल कठोर होता है तो आप कुछ भी सुन नहीं सकते कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहे हैं, आप जवाब नहीं देते। That is what the Pharisees did. और यही फरीसी लोगों ने यहाँ पे किया। They rejected Jesus. उन्होंने यीशु मसीह को नकारा। They refused Him and refused to respond and listen to Jesus. और वो लोग यीशु मसीह की बातों को नहीं सुने, उन्होंने उनको नकारा। And so Jesus was hurt. और इसलिए यीशु मसीह दुखी थे। He was grieved in the heart. और वो बहुत ही ज्यादा दुखी थे। But still He looked at them in anger. और फिर भी उन्होंने उनसे क्रोध से देखा। Even when Jesus saw them in anger, there was no fear in them and they still went to destroy Him. और जब यीशु मसीह ने उनके और क्रोध से देखा, फिर भी वो लोग नहीं डरे और फिर भी वो यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। How evil. ये कितना बुरा बात है। Going against God on the Sabbath is okay, but not getting up from your bed or rolling your bed is okay. Sabbath day, they don't allow anybody to do anything, but they are okay to go against God. सब्त के दिन में वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन सब्त के दिन में वो परमेश्वर के खिलाफ जा सकते हैं। How could that be lawful? ये कैसे सही होगा? Jesus was grieved. और यीशु मसीह बहुत दुखी थे। If you keep your heart hardened, you're going to grieve God, Jesus, the Holy Spirit. अगर आपने आपके दिल को कठोर किया तो आप यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचा रहे हो। Jesus could have said, open your heart यीशु मसीह ने कहा होता कि तुम अपने दिल को खोलो to the Pharisees and scribes, but He didn't say that. फरीसी को ऐसा बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला। He could have also said, be dead and gone. वो ऐसा भी बोल सकते थे कि तुम मर जाओ और यहाँ से चले जाओ। He didn't say that. उन्होंने ये भी नहीं कहा। Or He could have said, let there be fear in your heart, but He didn't say that. और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम्हारे मन के अंदर डर आ जाए। He didn't force them. और उन्होंने उनको जबरदस्ती नहीं की। But they had withered hearts like the man had withered hand. लेकिन उनका जो दिल था वो सूखा हुआ था, जैसे उस मनुष्य का हाथ सूखा हुआ था। Do you understand now? क्या आपको समझ में आ रहा है? They were so hard that they were not flexible. They were not ready to be restored in their hearts. उनका दिल इतना कठोर हो गया था कि वो बिल्कुल भी लचकीले नहीं थे, वो बदलने के लिए तैयार नहीं थे। So Jesus told the man, stretch out your hand. इसलिए यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा, अपने हाथ को बढ़ा। That man's hand just stretched out, और this came out. और उस व्यक्ति का जो हाथ है वो बाहर आ गया और वो बढ़ा। His flesh was restored. उसका जो मांस था वो सही हो गया। His hand became flexible. उसका हड्डी सही हो गया, उसका जो हाथ था वो लचकीला बन गया। Everything had changed in his life. उसके जीवन में सब कुछ बदल गया। Amazing, right? बहुत ही आश्चर्यचकित वाली बात है ना? This man who was rejected, lost, is now receiving good from Jesus and his life is completely changed. और ये व्यक्ति जो नकारा गया था, अभी उसने यीशु मसीह को अपनाया और उसका जीवन पूरा बदल गया। He just obeyed what Jesus said. उसने आज्ञा का पालन किया जो यीशु मसीह ने उसे कहा करने के लिए। When Jesus spoke to the Pharisees, they were silent. जब यीशु मसीह ने फरीसी से कुछ कहा तो वो चुप रहे। But when the Lord spoke to the man with the withered hand to stretch out his hand, he was not silent. He did it. लेकिन जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जिसका हाथ सूखा हुआ था उसे कहा अपने हाथ को आगे बढ़ा, तो वो चुप नहीं रहा, उसने परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया। If God is speaking to you, don't harden your hearts. अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं तो अपने दिल को कठोर ना बनाएं। Be softened. आप कोमलता में रहे। I want you to also see another verse in Isaiah chapter 56, which is 11. और मैं चाहता हूं कि आप यशाया का 56 का अध्याय 11वां वचन में आए। In fact, 10 onwards. 10 से हम पढ़ेंगे। His watchmen are blind, they are all ignorant, they are all dumb dogs, they cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber. Yes, they are greedy dogs which never have enough, and they are shepherds who cannot understand. They all look to their own way, everyone for his own gain, for his own territory.
उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं, वे भर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं, उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। You understand? क्या आपको समझ में आ रहा है? God knew that these were irresponsible leaders. परमेश्वर को मालूम था कि ये जो अगुवाई थे ये किसी काम के नहीं थे, And they went ahead to do evil और वो लोग आगे बढ़े बुराई करने के लिए, because they loved only gain and name and lot of money. सिर्फ उन लोगों को नाम चाहिए था, पैसा चाहिए था, They also wanted power and authority और उनको वो अधिकार और वो सामर्थ्य चाहिए था, because Jesus is getting it, Jesus has it, they don't like it. क्योंकि यीशु मसीह को वो सामर्थ्य मिला, इसीलिए उन लोगों को वो पसंद नहीं आया। They were defiling the Sabbath and he was trying to save them. They loved gain, they wanted money, they were so wanting authority and power. और वो लोगों को सिर्फ नाम चाहिए था, वो सामर्थ्य चाहिए था, वो अधिकार चाहिए था। But Jesus had authority, so they didn't like it. यीशु मसीह के पास वो अधिकार था, इसलिए उनको पसंद नहीं आया। They were defiling the Sabbath. वो लोग सब्त को अपवित्र कर रहे थे। He was trying to save them. और यीशु मसीह उन्हें बचाना चाहते थे। They needed to be killed and destroyed. उनको जो है मार डालना चाहिए था, वो तबाह हो जाना चाहिए था। But they are trying to kill Jesus. लेकिन अभी वो यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं। You get the point? क्या आपको समझ में आ रहा है? Hardness of heart can go to such extent they can completely reject God. कि दिल का कठोरता इस हद तक जा सकता है कि वो परमेश्वर को भी नकार सकते हैं। Be careful. इसलिए आप ध्यान दें। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, I just pray for my brothers and sisters. हे परमेश्वर पिता, मैं अपने भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। We pray that you deliver us from hardness of heart. हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कठोरता के दिल से मुक्त करें। Let our withered hearts become well, हमारा जो सूखा हुआ दिल है वो सही हो जाए, so that we can hear your voice and be obedient to you. ताकि हम आपके आवाज को सुन सके और आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें, And our lives will be changed. और हमारा जीवन बदल जाए। In Jesus' name we pray. ये हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और आपको हमारा मैसेज पसंद आया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो कोविड की स्थिति पूरी दुनिया भर में चल रही है, जिस कारण हम कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप ऐसी व्यक्ति है जो कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं और आप किसी ऑनलाइन सर्विस के खोज में हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हर रविवार को 11:30 बजे सिंपली बाइबल यूट्यूब चैनल में मिलते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे और वहाँ पे सिंपली बाइबल करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा सारा वीडियोस मिल जाएगा, और जो रविवार को 11:30 बजे जो लाइव सर्विस होता है वो भी आप देख पाएंगे। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मैसेज पसंद आता है तो आप शेयर करें, और वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को देखकर आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे, और मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप का ख्याल रखें इस कोविड की स्थिति में। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।